हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद इन मिनट्स। ये मेरा सेकंड पार्ट है एरे का, जो मैंने प्रोग्रामिंग फॉर प्लेसमेंट सीरीज स्टार्ट किया है। एज आई थिंक यू ऑल नो दैट टीसीएस एनक्यूटी इज कमिंग, सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। आई थिंक बोथ द बैचेस 2020 एंड द 2021 will be eligible for that, so start preparing for it today. Now in this video I am going to explain you about the sum of array elements and the maximum minimum, how to find the maximum minimum in an array. तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एरे है, हमने सबसे पहले एक एग्जांपल ले रखा है। हमें करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं टीसीएस एनक्यूटी या किसी भी प्रोग्रामिंग सेक्शन में किसी भी कंपनी के, वहां पे एन या अगर एरे एलिमेंट की बात होती है तो वहां पे एक कांस्टेंट दिया होता है कि एन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100, n should be greater than 1 and less than equals to 100. So you have to keep these constant in your mind. But today I am going to start without any constant. So first of all you have to take the size of an array from the user. So I am giving a message that system.out.println enter the size, enter the size of an array, enter the size of an array. After entering the size we have to take a input n, so we have to take a help of reference variable sc. Next int. After taking a input we have to define a array a, new int, then the n is written here because n is a subscripted value which defines the size of an array. After that we have to take a input from a user for entering number in an array. So we have to give a message that enter the elements of an array, enter the elements of an array. After that we have to apply a loop for initializing a array. So I am taking a variable I as a loop variable, so we have to define it first. So I have defined I here. After that I is the condition is I is less than n, so it starts from 0 and goes till the less than the length, because the index number always indexing starts from 0, so the last one is n minus 1, so the index number of last value is n minus 1. After that we have to update the value variable, that is I plus plus. So first of all a of I means, first of all I की वैल्यू क्या होगी 0, तो a of 0 पे हमें जो वैल्यू स्टोर करनी है वो विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस वेरिएबल sc हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब हमें करना क्या है, हमारे पास एक एरे इनपुट हो चुका है, अब हमें डेटा को फेच करना है और उसके लिए फिर से हमें लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा को फेच करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक एक डेटा को उठाना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू, और हमें एक वेरिएबल सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे और उसमें हमें करना क्या है, सम कर देना है। मैं जानता हूं ये बहुत बेसिक प्रोग्राम है, टीसीएस एनक्यूटी या किसी भी एग्जाम में इतना बेसिक नहीं पूछा जाएगा, बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक so that we can do tougher question very easily. So then now we have to do what, sum is equals to sum plus a of I. A of I is what? A of I is data fetching, means A of I is, first of all the value of I is 0, so A of I means A of 0. A of 0 पे क्या आएगा, जो भी वैल्यू A of 0 पे लेट करते हैं 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, A of I का 2 का वैल्यू इसके अंदर सम हो जाएगा। अब अभी तक हमने सम को भी डिफाइन नहीं किया है, तो अभी हमें सम को भी डिफाइन करना है। नाउ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सो अब हमें करना क्या है, अब हमें प्रिंट करना है द सम ऑफ एरे elements. So the message is sum is equals to plus sum, because जो sum है वो हमारा sum नाम के वेरिएबल में ही स्टोर है। आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम हमें रन करना है, और
अगर कोई एरर होगा तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। We have to put semicolon in this line and after that run it again. After compiling, the message is enter the size. We are giving the size 5, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Now the sum of the array elements are 15. So this is the answer for our sum of array element. Now we have to do what, the finding maximum and minimum. अब हमें maximum minimum find करना है इस array का। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, maximum और minimum find करने के लिए हमें सबसे पहले एक maximum let करना होता है, एक minimum let करना होता है। जो first array element होता है let करते हैं, यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम maximum let करेंगे और 2 को ही minimum let करेंगे। उसके बाद हम 2 से आगे कंपैरिजन करेंगे और अगर कोई भी नंबर 2 से बड़ा होगा, दिस मींस कि उस नंबर को हम बड़ा कर देंगे, और अगर कोई नंबर इस 2 से मींस जिसको लेट किया है उससे छोटा होगा तो उसको छोटा कर देंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन अ वेरिएबल min and max. After that we have to take a size of an array and after that we have to initialize an array, but we don't have to add the array element. Here we have to check something. ये जो लूप लगा है, सबसे पहले ये जो लूप लगा है ये किसके लिए लगा है, तो ये लूप जो लगा है वो डेटा फेचिंग के लिए लगा है। सबसे पहले इसके अंदर हमें चेक करना है, क्योंकि अभी तक हमने एक चीज नहीं किया है, मैक्सिमम और मिनिमम को हमें सेट करना है वैल्यू। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की वैल्यू को सेट करना है। तो मैक्सिमम इज व्हाट, a ऑफ 0 एंड व्हाट इज मिनिमम, मिनिमम को भी अभी हमने क्या बताया था, उसको भी हम क्या लेट कर लेंगे, a ऑफ 0। आफ्टर इनिशियलाइजिंग a ऑफ 0, सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है कि अगर जो हमारा a ऑफ i क्या है, डेटा जो हम फेच कर रहे हैं, अगर वो बड़ा है फॉर किससे, मैक्सिमम से, मींस कि अब नया मैक्सिमम जो होगा वो a ऑफ i होगा। एंड ऐसे ही हमें फिर से सर्च करना, ऐसे हमें फिर से लिखना है, किसके लिए कंडीशन लिखनी है, मिनिमम के लिए। इफ a ऑफ i जो हम ले रहे हैं वो क्या हो, a ऑफ i छोटा हो किससे, मिनिमम से, दिस मीन्स कि जो नया मिनिमम होगा वो किसके इक्वल होगा, नया मिनिमम हो जाएगा हमारा a ऑफ i के इक्वल। जो डेटा हमने फेच किया अगर वो छोटा है, जो हमने मिनिमम लेट किया उससे, तो वो a ऑफ i में स्टोर, मिनिमम में स्टोर हो जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, we have to print the maximum and minimum. We have find the maximum and minimum, so we have to print this also. So max is equals to max and min is equals to min, and min is equals to min. So this is the last question of this video. After that, in the next video I will tell you about the sorting techniques used in array. So after that I will tell you about the question which was asked during the TCS NQT array questions. So please watch my all the videos so that you will achieve good marks in TCS NQT. यहाँ पे एक ब्रेसेस का एरर है, सो ब्रेसेस एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो हम इन ब्रेसेस को हटा देते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल रन द सेम कोड। आफ्टर रनिंग एंटर द साइज, वी आर गिविंग द 3 के बाद हमें क्या करना है, 3 के बाद हम यहाँ पे इनपुट देते हैं 6, 89 एंड 1। सो अकॉर्डिंग टू अस minimum is 1 and the maximum is 89, so the maximum is 89 and minimum is 1। so ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैक्सिमम मिनिमम और सम ऑफ एरे एलिमेंट फाइंड करना। बट जो स्टूडेंट्स अदर देन CSIT बैकग्राउंड है, जो TCS NQT में अप्लाई करेंगे, उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही यूजफुल हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पे वो डेटा फेचिंग कैसे किया जाता है, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे, ये सारी चीजें वहां यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। So hope you all guys like my video and please like, share and subscribe and share to your friends. Thank you.